Hello students, welcome to the new lecture of physics. I hope you have already seen the previous video lectures. Today we will study a new topic called combination of resistors. This topic is very important from both point of view, and even in class 12 this lecture holds very importance. So before studying this topic, let us revise a previous concept. Suppose there is a resistance capital R and a current is flowing in the circuit which has a battery of voltage V. So current will flow in this direction from positive terminal to negative terminal. Let us say that at the end points of resistor there are 2 points A and B. So I have already taught you that if current is flowing in this direction, then the potential of A will be higher than potential of B. So let's say VA is greater than VB. Okay. So let's write Ohm's law here, which says V is equal to IR. I have already told you that I is current, R is resistance, and V. What is V here? Is it a potential or potential difference? So it is potential difference. It is delta V. So I can also write it as VA minus VB. Okay. This concept will be very useful in the upcoming topic. So remember this concept. What is it? It's simple. It's Ohm's law. Delta V is equal to IR and delta V is VA minus VB. Okay. So here we can say that current is flowing from high potential to low potential. There is a misconception that when current flows across a resistor wire, across a resistance, current gets decreased. No, it's a misconception. It doesn't happen. What gets decreased is a potential. So let's start the new topic. In combination of resistors, we will be going to study how resistors can be connected in different ways. So first let's study series connection, resistors in series. So इस कनेक्शन में मान लेते हैं कि 2 रेजिस्टर है, तत्काल अभी 2 या चलो 3 मान लेते हैं. All the 3 resistors are connected in series, as you can see from the diagram. In series, what we mean by series, that one end of one resistor will be connected to other end simultaneously. And here is the battery V. Okay. तो करंट यहां से फ्लो करना शुरू होगा और आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर ये 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, तो इन तीनों रेजिस्टर में सेम करंट फ्लो होने वाला है. ठीक है. तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है सीरीज रेजिस्टेंस में, करंट इज सेम. करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टर्स. ओके. नाउ करंट इज सेम एंड वी नो दैट V इज इक्वल टू IR. V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. अक्रॉस एनी रेजिस्टर. So if current is same and resistors are different, it definitely means that potential difference will be different in each resistors. So I am also writing it. Current is same in all resistors and but potential difference will be different in different resistors. हाँ, अगर ऐसा हुआ कि अगर रेजिस्टेंस के वैल्यू सेम रह गए, 2 रेजिस्टेंस के वैल्यू सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी उस दोनों में सेम हो जाएगा. मे भी क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम सीरीज में, है ना. लेकिन हम लोग बात करें अगर रेजिस्टर्स अलग अलग है, कोई 2 ओम है, कोई 3 ओम है, कोई 4 ओम है, तो फिर क्या होगा. तो अब यहां पर हम लोग को जो पढ़ना होता है, ठीक है, हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टर का कंसेप्ट पढ़ना होता है. इक्विवेलेंट रेजिस्टर कहे तो कि ये जो 3 रेजिस्टर जो काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, बेसिकली बैटरी से करंट को निकाल रहा है. ठीक है. तो इस तीनों रेजिस्टर की जगह एक ऐसा कौन सा रेजिस्टर रखे, है ना. जैसे कि मान लो कि 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम का 3 रेजिस्टर रखे हैं. ठीक है.
इस 2, 4 और 6 की जगह हम चाहते हैं कि एक ही रजिस्टर रखें जिसका कुछ भी ओम हो, 5 ओम हो या 10 ओम हो, कुछ भी हो, वो हम लोग देख लेंगे कि कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी उतना ही करंट निकाल पाए उतने ही बैटरी से, वही बैटरी से, सेम बैटरी से। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट का कंसेप्ट। ठीक है, तो वही हम लोग को यहाँ पे निकालना होता है बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के अक्रॉस क्या है। लेट से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस लेट से V2 है, इसके अक्रॉस V3 है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो V1 का वैल्यू जल्दी से बताओ क्या होगा, IR1 होगा। ठीक है, V2 का वैल्यू क्या होगा, IR2 होगा। V3 का वैल्यू क्या होगा, IR3 होगा। अब मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा हूँ कि व्हाट इज V1, व्हाट इज V2, व्हाट इज V3, है ना। व्हाट इज V1? V1 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, है ना। V2 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 एंड V3 इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R3। ठीक है, अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ लेते हैं कि ये 3 रेजिस्टेंस ऐसे थे। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना होगा, इस 3 की जगह बस एक रेजिस्टर लाना होगा। ऐसे करके इसको लेट से हम लोग R इक्विवेलेंट दे देते हैं। यही R इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग को निकालना है और यहां से करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, प्रीवियस वाले से हम लोग क्या कह सकते हैं और इस वाले से हम लोग कंफ्यूजन निकाल सकते हैं, वही हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करना होगा। क्या प्रीवियस वाले इसमें से हम लोग कह सकते हैं, ये मान लीजिए नंबर 1 फिगर है, ये नंबर 2 फिगर है। ठीक है, नंबर 1 से हम लोग कह सकते हैं कि नेट पोटेंशियल जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है, मतलब इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, और जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेज ऑफ रेजिस्टर्स होंगे। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है, V1 का वैल्यू कितना है, IR1, V2 का वैल्यू IR2, V3 का वैल्यू IR3 है। I को कॉमन ले लिया जाए क्या, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई दिक्कत, ये V हो गया। ये नंबर 1 डायग्राम से हो गया। नंबर 2 डायग्राम से, इस डायग्राम से हम लोग क्या कह सकते हैं, इस डायग्राम से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट होगा। सिंपल होगा, V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। ठीक है, अब अगर आप 2 इक्वेशन को कंपेयर करें, कौन कौन सा, इसको 1 और 2 को कंपेयर किया जाए तो हम लोग यहां से देखेंगे V और I दोनों में सेम है। ठीक है, या दोनों को इक्वेट कर दीजिए, I कट जाएगा। हम लोग डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि 3 रजिस्टर्स थे पहले। ठीक है, 3 रजिस्टर, मान लीजिए कि 3 बल्ब या 1 बल्ब, 1 पंखा, ये कुछ और था। ठीक है, इसका 2 ओम, इसका 4 ओम, इसका 4 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितने हो गए, 10 ओम हो गए। ठीक है, 2, 4 और 4, तो ये 2, 4 और 4 अलग अलग जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो है ना R इक्विवेलेंट एक ही बार में प्रोड्यूस कर दे रहा है। और R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, बस 2 तीनों का सम होना चाहिए, सिंपल समेशन होना चाहिए, 2, 4, 4 यानी 10, है ना। यानी 2 ओम, 4 ओम और 4 ओम का जो 3 रजिस्टर है वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, वो 10 ओम का एक रजिस्टर वो इफेक्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है। ठीक है, तो यही होता है, बेसिक होता है किसका, रेजिस्टेंस इन सीरीज का। ठीक है, अगर 2 रजिस्टर्स रहते तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, बस R1 प्लस R2 हो जाता है। एकदम सिंपल है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स टेक अ केस, let there be 2 resistances R1 and R2 which is connected to a battery of potential difference V and current I is flowing through it, and let's draw an equivalent circuit for this circuit. So here we will be taking R equivalent as a resistance and battery will be same so that we can compare it, and the current will be also same I. तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं, लेट से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। ठीक है, तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, करंट इज सेम विथ बोथ रेजिस्टर्स। ठीक है, ये तो, और हम लोग क्या सीख चुके हैं, R इक्विवेलेंट का वैल्यू। R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा सिंपल समेशन ऑफ रेजिस्टर्स R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये 2 एक एग्जाम्पल के तौर पे हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए
मैं इस पे क्वेश्चन कर लेता हूं, है ना, कुछ डाटा देकर। ठीक है, क्वेश्चन, 2 रेजिस्टर से 5 ओम और 15 ओम का ये 40 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं इस पे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। फाइंड आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? दूसरा, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, वो क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर, वो क्या होगा? चौथा, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टर, वो क्या होगा? ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आर इक्विवेलेंट निकालना। अब जब ये सीरीज में, तो आप लोग अभी जस्ट पढ़े कि सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका होता है? सिंपल समेशंस होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखता हूं पहला का, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। R1 क्या? 5, इसको मान लेते हैं R1 है, ये मान लेते हैं R2 है, यहां पे करंट मान लेते हैं I फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं। ठीक है, V1 V2 क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टर से। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो। 5 प्लस 15 यानी 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, यूनिट लिखना ना भूलना। दूसरा क्वेश्चन है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सर्किट के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है? ठीक है, तो अब इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं क्या? ये सिंपल एक रेजिस्टर है 20 ओम का और 40 वोल्ट की क्या है यहाँ पर बैटरी रखी हुई है, तो यहाँ पे करंट पूछा जा रहा है। तो सिंपल बता देना है कितना होगा करंट, V बाई आर। क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 40 इज इक्वल टू I इंटू आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 40 हो गया, I रह गया, R कितना हो गया? 20 हो गया, तो यहां से I का वैल्यू कितना आ गया? 2 एम्पियर। सिंपल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तीसरा क्वेश्चन पूछा है करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। ठीक है, अभी हम लोग क्या निकाले? यहां पे हम लोग निकाल चुके हैं करंट का वैल्यू 2 एम्पियर है, यानी इस करंट का वैल्यू 2 एम्पियर है। तो सर्किट में 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो बताओ 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रही होगी? तो इसमें भी वही फ्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज है, यहां से करंट चलेगी, ऐसे से करंट करके जाएगी। ठीक है, तो 5 ओम रेजिस्टर में भी कौन सी करंट फ्लो करेगी? इतनी ही करंट फ्लो करेगी, 2 एम्पियर। तो यहां पे भी करंट का वैल्यू कितना आंसर आएगा? थर्ड वाले में 2 एम्पियर ही आएगा। ठीक है, I1 का वैल्यू भी यहाँ पे 2 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टर, यानी ये V2 का वैल्यू पूछ रहा है। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ की मदद से I इंटू आर होता है। ठीक है, I ही है, वो सब जगह सेम ही। R की जगह क्या लिखूंगा? R2 लिखूंगा। समझ में आ रहा है? ये ओम्स लॉ के द्वारा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू आर, ओम्स लॉ। I का वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर है। R2 का वैल्यू कितना है? 15 ओम है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 30 वोल्ट। V2 का वैल्यू 30 वोल्ट हो जाएगा आंसर। सिंपल। अगर कोई पूछता 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो यहाँ I इंटू R1 करते। I इंटू R1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 यानी 10। समझ में आ रहा है? तो ये 10 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, तो टोटल 40 वोल्ट आना चाहिए। देखिए टोटल वोल्ट बैटरी का कितना वोल्टेज है? 40 वोल्ट आना भी चाहिए। बहुत सही, हम लोग क्रॉस चेक भी कर लिए। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन है, किस फॉर्मेट में यहाँ पे पूछा जाता है, कैसे करना होता है। तो आप हर समय क्या करो, जब भी सीरीज में रहे तो 2 रेजिस्टर अगर आपका दिमाग खराब कर रहा है तो उसकी जगह एक रेजिस्टर बना दो, इक्विवेलेंट सर्किट बना दो, उसके बाद सारी कहानी पढ़ लो। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना समझ में आ गया है, दोनों की जगह एक रेजिस्टर रख देना है। सिंपल यहाँ पे एडिशन करना है, यहाँ तो कोई सोचना ही नहीं है, सीरीज में तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करंट निकाल दो V बाई आर करके, फिर उसके बाद इसका इंडिविजुअल पूछ रहा है तो I इंटू R1, I इंटू R2 वापस पुराने सर्किट पे आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी क्या करेगा ना कि V1 V2 नहीं बोलेगा डायरेक्ट पूछने के लिए, ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टर। वो क्या कर देगा, है ना, मैं बता रहा हूं वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देगा। ठीक है, और बोलेगा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर।
अरे तो वोल्ट मीटर क्या रीड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस रीड करता है। तो बेसिकली क्वेश्चन वही पूछ रहा है यहाँ पे, वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा? यहाँ पे भी 30 वोल्ट ही होगा, है ना। कभी कभी वो नहीं पूछेगा व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, वो यहाँ पे एक एमीटर लगा देगा, ठीक है, बोलेगा कि एमीटर में कितना करंट फ्लो होगा, या व्हाट इज विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो एमीटर क्या रीड करता है? करंट फ्लो को रीड करता है, उसके मैग्नीट्यूड को रीड करता है। तो बस उसका आंसर देना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ और मान लीजिए 3 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलो। आर प्लस आर प्लस आर यानी 3R। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि n रेजिस्टर्स हैं यहां पे, n समझ में आ रहा है? n कोई नंबर है, n रेजिस्टर्स हैं। अब बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा? व्हाट विल बी आर इक्विवेलेंट हियर, है ना। आर को कितनी बार जोड़ना है? n बार जोड़ना है, सिंपल। n बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? nr हो जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? nr। अगर कोई आपसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट विल बी द करंट, तो करंट क्या हो जाएगा? v बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, दिक्कत है ना, डायरेक्ट v इज इक्वल टू आई आर कहां से आ रहा है? ये ओम्स लॉ से आ रहा है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? nr हो जाएगा, सिंपल आंसर ये है ना। एक नंबर के क्वेश्चंस में ये सब पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं कि एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ट्रू या फॉल्स बताना, या यस और नो में आंसर दो। इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम और डिफरेंट? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम और डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। सो व्हाट विल बी योर आंसर? या ट्रू, सेम होगा, है ना। क्यों? क्योंकि करंट सब में सेम है और रेजिस्टेंस की भी वैल्यू क्या है? सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सब में क्या होगा? सेम ही होगा, सिंपल है इसमें, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन समझना। इन रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रजिस्टर, ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू होगा, है ना। हम लोग देख रहे हैं आर इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा है ना। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमेशा इस तीनों से क्या होगी? ज्यादा ही होगी। तो अगर कोई इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लिया जाए R2 से, लेट से R2, तो उससे आर इक्विवेलेंट क्या होगी? हमेशा ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो ये सब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, एक नंबरिया क्वेश्चन। फिर अब हम लोग पढ़ने वाले रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा तो उसमें रेजिस्टर्स इन पैरेलल हम लोग पढ़ा जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले, किसी एनसीईआरटी के बुक से एक बार उसको देख भी ले, है ना, ताकि रेजिस्टर्स इन पैरेलल आपको समझ में आ जाए, है ना। दोनों वीडियो को लगातार नहीं देखना है, रेजिस्टर्स इन सीरीज के बाद ब्रेक लेना है, किसी बुक को अच्छे से पढ़ लेना है, बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर रेजिस्टर्स इन पैरेलल देखना होगा, ठीक है। थैंक यू।